اب بات کر لیتے ہیں ایکسپو سینٹر میں جو نمائش ہوئی پلاسٹک پرنٹنگ اینڈ پیکیجنگ کی نمائش تھی، اور ظاہر ہے جب پلاسٹک کی بات آتی ہے تو انوائرمنٹ سب سے پہلے آتا ہے سامنے کہ کیا ہماری عوام کو یا ہمیں یہ اویئرنیس ہے کہ اسے استعمال کس طرح کرنا ہے، پھر اس کو جو ہے ڈسپوز آف کس طرح کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ جو پلاسٹک ہے یہ کتنا بہتر بھی ہے ہمارے لیے اور کتنا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ یقیناً جو اس کا استعمال ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ عوام میں کیا یہ اویئرنیس ہے کہ جو پلاسٹک ہے یہ کس طرح ہیزرڈ بھی بن سکتا ہے اور کس طرح ہمارے کام بھی آ سکتا ہے۔ یہ بڑی تھن فائن لائن ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ بہت بڑا ایکسپو میں نمائش جاری تھی یہ، اور یقیناً جو اویئرنیس ہے عوام میں وہ بہت زیادہ ہونی بھی چاہیے اور اس پر بات بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم خان تنوری صاحب، ایکسپو آرگنائزر ہیں۔ سلیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو دی شو۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے احتشام الدین صاحب، ایگزیبیٹر ہیں، پاکستان پلاسٹک ایسوسی ایشن سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ سر کیسے ہیں؟ میں ذرا سلیم صاحب کی طرف آؤں گا۔ سلیم صاحب، پلاسٹک پرنٹنگ اینڈ پیکیجنگ یقیناً تین بہت اہمیت کے حامل یہ ڈومینز ہیں۔ یہ جو ایکسپو میں نمائش ہوئی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سے ایونیوز تھے جو ایکسپلور ہوئے، پھر اس کے بعد عوام کا جو ریئیکشن تھا وہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ہیونگ می۔ پلاسٹک پرنٹنگ پیکیجنگ ایک بہت ہی اہم سیکٹر ہے پاکستان کی اکانومی کا، اور نارملی پلاسٹک کو ایک نیگیٹو وے میں لیا جاتا ہے، بٹ اگر آپ دیکھیں تو آج اس پیکیجنگ کی وجہ سے آپ کا جو فوڈ کا جو ویسٹیج ہے وہ کم سے کم ہو رہا ہے۔ کم ہو گیا پاکستان میں آج بھی 20% فوڈ ویسٹ، اور اوور آل پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی تعداد کہیں زیادہ ہے، تو وہ بیٹر پیکیجنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو بیسیکلی اگر آج دیکھیں آپ تو آج ریسائکلنگ کے اوپر بات ہو رہی ہے، آپ جو پلاسٹک اس کو دوبارہ سے ریسائکل کر کے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس نمائش میں تقریباً 250 سے زیادہ کمپنیز 15 ممالک سے انہوں نے حصہ لیا ہے، جس نے اپنی ٹیکنالوجی انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے، اور لوکل مینوفیکچررز جو تھے فلیکسیبل پیکیجنگ سے انہوں نے اس میں بڑی تعداد میں حصہ لیا ہے۔ رائٹ، بالکل ٹھیک ہے۔ احتشام الدین صاحب، آپ کا تعلق کیونکہ پلاسٹک ایسوسی ایشن سے بھی ہے، میں آپ سے یہ سوال کروں گا، جس طرح سلیم صاحب نے کہا کہ اویئرنیس کی کمی ہے کہیں نہ کہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، تعلیم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن شعور میں کہیں نہ کہیں یہ لیک کر جاتا ہے کہ جو پلاسٹک کا استعمال ہے اس کو کس طرح بہتر انداز سے کیا جا سکتا ہے۔ پھر ریسائکلنگ کا جو کانسیپٹ ہے میرے خیال سے یہ اس طرح نہیں ہم پروموٹ کرتے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں خاص طور پر اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، اور بہت اچھا ایک آپ نے ایک پروگرام کیا ہے کہ انوائرمنٹ کی اویئرنیس کے حوالے سے۔ ایکچولی کیا ہے کہ ہمارے ہاں چیز کا جو پلاسٹک کو سمجھ لیا گیا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی کوئی بری چیز ہے، جبکہ ساری دنیا میں یہ پلاسٹک جو ہے نا بہت استعمال ہو رہا ہے۔ پلاسٹک ایک ریپلیس مٹیریل ہے، اس نے بہت ساری چیزوں کو ریپلیس کیا ہے، لو کاسٹ ہے، آسانی سے ریسائیکل ہو جاتا ہے، کاٹیج انڈسٹریز کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم پیکیجنگ کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمیں جو پرابلم نظر آتی ہے تو اس میں پیکیجنگ کوئی ایک چیز استعمال نہیں ہوتی، اس میں صرف ایک چیز جو نظر آتی ہے اس کے اوپر اس کی وجہ سے زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، اور وہ تھیلیاں ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جیسے پیٹ کی بوٹل ہے یا اور چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں تو آپ کو کہیں پڑی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، ویلیو ایڈیڈ ہوتی ہیں، ان کو فوراً اٹھا لیتے ہیں، ان کا استعمال ہوتا ہے یہاں پہ۔ اور جو تھیلیاں ہیں لو کاسٹ ہونے کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ایک لیجسلیشن بھی ہوا ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، ای پی اے کے ساتھ ہم نے کر کے، سیپا یہاں پر ہے سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی، ان کے ساتھ مل کے بھی ہم نے کافی اس پہ کام کیا، اور ایسوسی ایشن نے تو اس نتیجے پہنچے کہ اس کو تھوڑا سا موٹا کر دیا جائے، اس کو تھوڑا ایکسپینسو اور اچھا کر دیا جائے تاکہ یہ ویلیو ایڈڈ ہو جائے، تاکہ اس کو لوگ استعمال کر لیں۔ ہمارے پاس ریسائکلنگ کا باقاعدہ بہت انڈسٹری ریسائیکل کر رہی ہیں۔ ہمارے یہاں پلاسٹک ایسوسی ایشن نے جو ایک سلوگن دیا ہے جو اس پہ ہم ہمیشہ یوز کرتے ہیں، وہ ہے ریڈیوس، ری یوز اینڈ ریسائیکل۔ تو یہ سارے کنسیپٹ ہے ہمارا۔ ایسے اس میں آپ کو میں عرض کروں کہ یہ پلاسٹک وہ ایسی بری چیز نہیں ہے، صرف مسئلہ اویئرنیس کا بھی ہے۔ اویئرنیس سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارا کچھ مزاج بن گیا ہے، کیونکہ میں افورڈ کر سکتا ہوں تو لہٰذا میں پھینک دیتا ہوں، میں کیئر نہیں کرتا ہوں، یہ دوبارہ استعمال کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ انفارچونیٹلی ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بنز وغیرہ بھی رکھے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایون بڑی بڑی کچرا کنڈی بنی ہوتی ہے تو وہ کچرا کنڈی خالی ہوتی ہے، کچرا باہر پڑا ہوتا ہے، تو یہ ہمارا ایک اپنا پرابلم ہے، یہ پلاسٹک کا پرابلم نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے پلاسٹک جو ہے نا اس کے کتنا استعمال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہیزرڈس ہے، لوگ جلا دیتے ہیں، بھائی جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہم نے اس پہ کام کیا اور کافی، تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد میں بھی اور ایون کراچی میں بھی یہاں پہ ایک روڈ بنائی گئی،
उस रोड के अंदर जो जिसमें प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया, जी बिल्कुल किया गया, बिल्कुल हमने कवर भी किया था। अच्छा, अब उसके अंदर जैसे आप जानते हैं कि प्लास्टिक जो वेस्ट था ना, बिल्कुल उसको हमने ऐड कर दिया। होता ही है कि जब आप रोड बनाते हैं बिचुमेन के साथ उसको ऐड कर दिया जाता है। उसका फ़ायदा क्या है? सिर्फ उससे जान छुड़ाना मकसद नहीं है, बल्कि उसके बहुत फ़ायदे हैं। आप जितना प्लास्टिक उसमें ऐड करेंगे तो वेस्ट उससे, क्योंकि प्लास्टिक में पता है पानी पेनिट्रेट नहीं करता तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। केमिकल है वो, उसमें उसका फ़ायदा क्या हुआ कि इसकी जो मिनिमम आप देखें तो जो बेनिफिट वही आता है कि 3 फोल्ड उसकी लाइफ बढ़ गई जी, कॉस्ट रिड्यूस हो गई, यानी 3 टाइम्स लाइफ बढ़ गई, और इट कैन गो अप टू 15 टाइम्स। राइट 15 टाइम्स अगर आपकी रोड की लाइफ बढ़ जाए। देखिए हमारे यहाँ क्या हाल है कराची का, हर जगह खड्डे और वो बदनामी, ज़रा सी बारिश हो जाए हमारी प्रॉब्लम है। तो ये बड़ी कामयाबी से हो रहा है। ना सिर्फ कराची, ये पाकिस्तान में हमने इसको टेस्ट किया है, बल्कि हमने लोगों काफ़ी हर एजेंसीज के साथ मिल के हुकूमत को बताया कि इस दुनिया में हो रहा है। देखें इंडिया में बाकायदा लॉ है जी, आपको यूज़ करना है, और यूके में है और जगहों पे भी है। जी। तो अगर हम भी ये कर लें तो हमारा ही फ़ायदा है। मैं तो समझता हूँ हमारे यहाँ लॉ बन जाना चाहिए और उसके ऊपर यूज़ करें तो हमें ये कचरा भी नज़र नहीं आएगा जो नज़र आ रहा है। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा बहुत एक आपको अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ लोगों ने ये प्रपोज़ल दिया है, जो रिसाइकलिंग करते हैं, उन्होंने कहा कि अगर दुकानदार ये हमें कलेक्ट कर दें या हुकूमत की तरीके से हमें इस अलग करके दे दे, हम उनको साफ ख़रीदने को तैयार हैं। तो आपका ये भी एक चीज़ हो सकती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सलीम साहब, जिस तरह एहतशामुद्दीन साहब ने कहा, यकीनन एक बहुत वसी टॉपिक है, इस पे बहुत जितनी डिबेट की जाए कम है। पैकेजिंग की अगर बात कर लें तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी शिकायत ये भी है, ख़ासतौर पर किसान कम्यूनिटी के उन्हें उनका मुआवजा नहीं मिलता। फिर उसके बाद और भी जो दीगर हमारे FMCG प्रोडक्ट्स हैं, पैकेजिंग पर कितना रिलाई करना चाहिए? हमारे यहाँ बिल्कुल काम नहीं होता है पैकेजिंग पर। लोग अमूमन अपनी प्रोडक्ट्स इसी तरह मार्केट में सेल करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल जितना अच्छा दिखाया जाएगा उतनी आपको अच्छी वैल्यू मिल सकती है उसकी। जी बिल्कुल, हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। अगर आप थाईलैंड की एग्जांपल्स देखें तो वो पूरी दुनिया से फ्रूट्स लेके उसको प्रिजर्व करके वो पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। एग्जैक्टली, दैट इज पैकेजिंग। इवन कि हमारे मैंगोज को, या आप उसको देखें कि जो प्रोडक्ट उनके पास, जो फ्रूट्स उनके पास नहीं उगते, बट उसको वो पैक करके पूरी दुनिया में बेच रहे हैं, ड्राई करके बेच रहे हैं। तो पैकेजिंग इज़ वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो आने वाला वक्त है जिसमें सबसे ज़्यादा जो शॉर्टेज है, अभी जो एक नई स्टडी आई है वो कहते हैं कि सर्वाइवल ये है कि जिसके पास लैंड है, जिसके पास एग्रीकल्चर है, बिकॉज फूड का शॉर्टेज होने वाला है पूरी दुनिया में, कोई ग्लोबल इन्वायरमेंट, आपके क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो उसमें हमें ये चाहिए कि हम बेटर पैकेजिंग की तरफ जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर लैंड है, जिसमें आपने फार्मर्स की बात की है। तो डेफिनेटली क्या होता है कि उनका फ्रूट्स, अब आप गिलगित बल्तिस्तान की एग्जांपल्स ले लें या कोयटा की एग्जांपल्स ले लें। गिलगित बल्तिस्तान से आप वो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसको आप कराची तक लाने के लिए आपको बेटर पैकेजिंग चाहिए। वो वहीं पे सड़ जाता है या उसको वो ड्राई कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे है। अगर हमारे पास बेहतर पैकेजिंग हो, अब गवर्नमेंट इसके ऊपर सपोर्ट करे पैकेजिंग को, जिस तरह अभी एहतशाम साहब ने भी कहा कि अगर हम कोई इसके ऊपर एक लॉ बना लें। अभी जो पिछले दिनों गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन पास की भी थी, मगर ओबियसली उसमें चाहिए कि स्टेक होल्डर्स को लेकर आएँ, तो ताकि वो अपनी एक बेटर ओपिनियन दे सकें कि हम किस तरह इस प्लास्टिक को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक इन्वॉल्व है हर चीज़ में, पैकेजिंग में भी प्लास्टिक इन्वॉल्व है। मगर वो कहते हैं कि बेटर पैकेजिंग, बेटर प्लास्टिक, तो उसको आप किस तरह कर सकते हैं। आज आप देखें रिसाइकिल के ऊपर बात हो रही है, रीयूजेबल की बात हो रही है। दुनिया में जो आपके FMCGs हैं वो इन्फेसाइज कर रही हैं कि आपका 20 to 30% रिसाइकिल होगा तो हम आपकी प्रोडक्ट लेंगे। राइट, अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है ये तो। जी, अब क्या हो रहा है कि जो हम जिसे कहते हैं कि जो रॉ मटेरियल पूरी दुनिया से इंपोर्ट करते, जैसे पाकिस्तान है तो रॉ मटेरियल हम सारा मिडिल ईस्ट से या चाइना से इंपोर्ट करते हैं जी। तो इस सेम गोज विद द अदर कंट्रीज। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपने रॉ मटेरियल्स जो आपने इंपोर्ट किया है आप उसके साथ प्रोडक्ट बना रहे हैं, मगर कुछ ममालिक में जो रिसाइकल प्रोडक्ट है वो महंगी हो गई है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर लगा दिया, एम्फसाइज किया कि आपने रिसाइकल इसमें डालना 20 to 30%, सो दैट इज़ इवन गेटिंग एक्सपेंसिव। द रीज़न इज़ कि आप वो प्लास्टिक को जिस तरह के जर्मनी में या यूरोप में डिफरेंट उन्होंने अपने वो लगाए हुए हैं, बिन्स लगाए हुए हैं कि आप इसमें वो डालें एंड देन यू कैन गेट द कूपन। आप उसमें बोतल डालेंगे, आपको उसके वो पैसे मिलेंगे और जाके आप किसी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस अगर पाकिस्तान में चलाई जाए तो मेरे ख्याल में कि हम इसको बेहतर तरीके से प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं। सर वैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऑन लाइटर नोट ये भी कहूँगा कि अगर ये अवेयरनेस हम यहाँ भी चलाते हैं तो आपको नहीं लगता कि हर बंदा प्लास्टिक इकट्ठा करना शुरू कर देगा फिर उसके बाद? एक्चुअली इट इज़ हैपनिंग नाउ एक्चुअली, और ये अच्छी बात है। जी बिल्कुल, इट इज़ हैपनिंग नाउ। देखें प्लास्टिक का आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले तक
आपको प्लास्टिक कम नज़र आता था, या आपको कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी चीज़ें थी जो आपको रोडों पर नज़र नहीं आती थी। उसमें से कुछ ऐसे बच्चे थे या कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ थी जो वो प्लास्टिक को या उस कचरे को उठा के ले जाते थे, उसको बेचते थे। बट ऐसा ऐसा आप देखें कि वो नहीं हो रहा है, और आपको हर तरफ पूरे शहर में प्लास्टिक और कचरा कुंडा सब नज़र आ रहा है। बेसिकली हमारा जो कचरा है, जो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या गवर्नमेंट ऑफ सिंध को या हमें जो उनने जो प्राइवेट सेक्टर्स है उन्होंने प्रपोजल दिया है कि यू आर सिटिंग ऑन द ट्रेयर। आपका कचरा बेसिकली वो आपका एक ट्रेयर बिल्कुल है, वो आपका वो उसका अगर आप हमें वो दें, हम उसको इस्तेमाल करें तो वी कैन यूटिलाइज इट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। वही वाला कचरे को बजाय से कि हम उसको बंद करें। और अगेन उसके ऊपर अगर हम रोड्स की बात करते हैं, प्लास्टिक इस्तेमाल की बात करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये अवेयरनेस है जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर चलाएं और लोगों को इसके अवेयरनेस दें कि हम प्लास्टिक को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको डिस्पोज ऑफ कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक जी, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा, तो शाहमुज़ीन साहब, आई नो ऑफ एन NGO, मुझे शायद उसका नाम नहीं जहन में आ रहा, लेकिन उनकी तरफ जब हम गए तो मुझे पता चला कि वो बच्चों में ये प्रमोट करते हैं कि आप आते हुए रास्ते में, क्योंकि एजुकेशन इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ मुफ्त पढ़ाया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा जी आप रास्ते में आते हुए आपको एहसास कमतरी का शिकार भी ना हो या इस चीज़ का ना हो, आप कंट्रीब्यूट करें, स्कूल को प्लास्टिक ला के दिया करें, प्लास्टिक बॉटल्स उठा लिया करें रास्ते से आते हुए, घर से स्कूल का जो रास्ता है उसमें जितना प्लास्टिक आपको दिखता है वो आप उठाते हुए आएँ। तो ये आपको लगता है कि इस सोच को हम मज़ीद वसी कर सकते हैं और अपने जो तालीमी इदारे हैं बाकी या प्राइवेट सेक्टर है उनमें भी इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? आपको बहुत कम पढ़ाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, आपने सही फरमाया। एक्चुअली स्कूलिंग से ही ये सब चीज़ें स्टार्ट होती है बच्चों से, और जब आप उनको बताते हैं तो वहीं से हम आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और ये हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, बहुत सारे स्कूल्स के अंदर हो रहा है। और इसमें इस्लामाबाद में भी कुछ NGOs हैं वो भी कर रहे हैं, कराची में भी कर रहे हैं। साफ़ मोहल्ला के नाम से एक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो उसके अंदर ये है कि बच्चों जब करते हैं तो बड़ों को भी शर्म आ जाती है, शायद वो करना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ हमारे यहाँ थोड़ी सी लैग कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द ओनली वे जिसको हम लेके जा सकते हैं। और जो हम ज़्यादा लोग आगे निकल चुके हैं, बड़ी वो इस क्रॉस कर चुके हैं, शायद उनको ज़रा डिफ़िकल्टी होगी वापस आने में, लेकिन बच्चों के साथ आप करेंगे तो एक अच्छा माहौल आपका मिल रहा है, साफ़ मोहल्ला या इस तरह की जो चीज़ें। देखिए, प्लास्टिक के हवाले से मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ना सिर्फ ये, जैसे सलीम साहब ने बताया कि इससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और नहीं कर सकते। सिंगापुर में आप देखें जी, पहले उन्होंने अपना सारा कचरा लेकर के उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू, अब उनको वो कचरा कम पड़ रहा है। सही, वो दूसरों से कचरा ले रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। सही है ना? तो हम भी ये कर सकते हैं, हमारे पास बहुत कचरा है, अब इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कचरे को हम इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी का, और इसके ऊपर काम भी मैं आपको बताऊं शुरू हो चुका है, और पाकिस्तान में काम और भी बहुत शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ये कि इसकी ब्रिक्स बनाई जा रही हैं जी। और ब्रिक्स बनाने का एक फ़ायदा ये है कि वो प्लास्टिक के ब्रिक्स हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा है। जैसे हमेशा कहता है जी 500 साल तक कुछ नहीं होगा या इतने साल तक कुछ नहीं होगा, तो ये आपको कचरे से बन रही है। पाकिस्तान इज़ वन एग्जांपल। अफ्रीका यानी हमारे जैसे कंट्री जो भी हैं उनके अंदर वाकई इट्स अ ट्रेजर। उसके अंदर ये है कि आप कलेक्शन का प्रोसीजर, एक्चुअली सारे काम का एक प्रोसीजर, ऐसे नहीं गंदगी में घुस जाता आदमी, बाकायदा प्लांट है यहाँ पे। आपको देखिए जर्मनी के, स्विट्ज़रलैंड के और ऐसे ऐसे प्लांट्स लोग लेकर आए हैं जिन्होंने यहाँ पे, उनको वॉशिंग होती है, प्रॉपर क्लीनिंग होती है, सब कुछ करने के बाद उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। इवन हमारे यहाँ ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि बेवरेज की हैं, वो अब रिसाइकल मटेरियल के अंदर जो है ना बॉटल्स बना रही हैं। बिल्कुल सही। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, हो रही हैं। मैं एज एन एग्जिबिटर, हमारी कंपनी जो है वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स को प्रमोट करती है, बेचती है, तो उसमें जो आपने देखा थिन वॉल प्रोडक्ट होती हैं ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर बिरयानी या इस तरह की चीज़ें होती हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो उसके अंदर पैक की जाती हैं। तो वो प्रमोशन है सारी दुनिया में चल रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, राइट जी। अच्छा सलीम साहब, वक्त थोड़ा सा कम है हमारे पास और एक आखिरी सवाल करेंगे, फिर हम इसको रैप अप करेंगे। एक्सपो प्लास्टिक प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, आपको क्या लगता है कि जो आवाम का रुझान था, या फिर उसके बाद कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं जो पब्लिक के लिए यहाँ खोले जा सकते हैं इस एक्सपो के थ्रू, क्योंकि ज़ाहिर है या फिर अवेयरनेस किस तरह रेज़ की जा सकती है? मेरे ख्याल से आवाम को ये मालूम तो है अब कि उनके बेसिक जो राइट्स हैं या फिर सोशल उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी ज़रूर है इस अवेयरनेस में। जी बिल्कुल, एक्सपोज पूरी दुनिया में बेसिकली अवेयरनेस के लिए होते हैं, एंड आपके उसमें जॉइंट वेंचर्स और उसमें बिजनेस आपके और आपके इकॉनमी के लिए बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। राइट। अब हम आज पूरी दुनिया में जो बात हो रही है, जो ओबियसली जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबिलिटी का,
कि हम अपनी चीज़ों को किस तरह सस्टेनेबल कर सकें। और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हम अवेयरनेस कैसे क्रिएट करेंगे रिसाइकलिंग के ऊपर जी। एंड रिसाइकलिंग इज़ द हॉट टॉपिक नाउ। अब देखें इस एग्जीबिशंस में पूरी दुनिया से, मेनली यूरोप से जो कंपनीज थी वो रिसाइकलिंग से आई हैं, उनने पाकिस्तान में एक अवेयरनेस क्रिएट की है कि आप अपने प्लास्टिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली अब जो एग्जीबिशन में जो कंपनीज थी मेनली फ्रॉम यूरोप एंड चाइना एंड ऑल दैट, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले की। इसका जो फ़ायदा हुआ दो तरफ से, एक तो ये था कि जो कस्टमर्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर्स हैं बिल्कुल पैकेजिंग के एंड प्लास्टिक के, वो वहाँ पे बैठे हैं, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी साथ आ रही है। तो बायर्स एंड सेलर दोनों एक प्लेटफॉर्म पर हैं, तो जिससे पाकिस्तान को डेफिनेटली फ़ायदा होगा और हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी और हम एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सलीम खान तनूरी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एहतिशामुद्दीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला।